Apurva, and I got lot and lot of DMs on Insta regarding this. Yeah, the tattoo. So I thought, why not to make a detailed video of do's, don'ts, what is the basic process, and all of it. So this is all what I'm sharing my personal experience and what all we did. Tattoo wala has given us just different instructions what to do, what not to do, and what we followed and how it turned out. So this is like after complete 1 month I'm shooting this videos because I wanted to be all very real and give you proper update of what is the situation between this 1 month. मुझे क्या फेस करना पड़ा, what were the do's and don'ts, and क्या actual में मैंने follow किया and how it turned out, कुछ issues हुआ क्या. So I waited for this 1 month to see what are the complete things going on. And so I have divided this video in few parts. Like first is the do's and don'ts, which are like before tattoo, that when to do a tattoo and what are the preps for the tattoo. So the first point is do's. Always either you have to shave the particular part or you have to wax. What I would suggest is go for waxing. Why? Because then that wax के साथ तुम्हारा वो part का tan भी निकल जाता है. So when you reveal it, definitely looks much great, like the pictures and videos and whatever it is. So it comes really nice. That is the first point. And the most important point is, as you shave, hairs थोड़ा जल्दी आता है normally, wax से ज़्यादा जल्दी आता है, तो it grows upon, तो वो बहुत जल्दी grow होने लगता है. And then mostly, I mean, I was like very cautious for my tattoo area for at least maybe 2 weeks or more than that. I used to take a proper care because I was like कहीं infection ना हो जाए and all of those things. So वहाँ पे hair grow होने लग जाता है थोड़ा, and then you cannot remove it, you cannot shave it again. Yeah, obviously for boys who have never done waxing, you can go for razor, that is fine. But जहाँ तक हो सके, go for waxing so that it would look much prettier. For tattoos, always there is a mixed feeling for the first timers. करवाना है नहीं करवाना है, pain होगा क्या, कैसे ध्यान रखेंगे, and all of those things. We were very sure from before only कि हम लोग को first anniversary पे कराना है. But when we reach, I would like to talk about tattoo design. तो tattoo design most of the हमारा क्या होता है कि either we are like कि हम लोगों ने कहीं पे वो tattoo देखा होता है, like किसी के हाथ पे देखा होता है तो वो हमें पसंद आ जाता है, और अदरवाइज वी कुड हैव सीन इन समवन्स वीडियो. तो ये हो गया कि कहीं से हमने देखा है, हमारा फिक्स है कि हमको वो बनाना है. बट व्हेन इट इज नॉट फिक्स, व्हाट यू डू, यू गो ऑन गूगल, वहाँ पे आप बहुत सारा ढूंढते हो. यू गो ऑन पिंटरेस्ट, वहाँ पे आप बहुत सारा ढूंढते हो. पिंटरेस्ट पे एक्चुअली बहुत अच्छे डिजाइन होते हैं. सो व्हाट वी पर्सनली डिड वाज, हम लोगों ने गूगल पे देखा, हम लोगों ने पिंटरेस्ट पे देखा, हम लोगों ने बाकी वीडियोस देखे. इनफैक्ट वी वेंट टू द इंस्टाग्राम channels, what you say, Instagram profiles of the tattoo artists, famous tattoo artists, जो भी वो videos वगैरह डालते हैं थोड़ा बहुत वैसे, तो हम उस पर भी गए. and still हम लोगों को as such कुछ मिला नहीं. I was very precise for my tattoo, मतलब मेरा डिज़ाइन फिक्स नहीं था, बट आई हैड द फिक्स्ड कंटेंट कि मुझे नाम तो हम लोगों को एक दूसरे का कराना था, दैट वॉज फाइनल. बट अलॉन्ग विद दैट मुझे चाहिए था इन्फिनिटी इन माई डिज़ाइन, एंड अलॉन्ग विद दैट अ लिटिल हार्ट विद अ रेड कलर इन इट. लाइक आई वॉन्टेड अ लिटिल टच ऑफ कलर इन माई टैटू. सो दिस वॉज ऑल फाइनल, बट डिज़ाइन फाइनल नहीं था. एंड इस बेसिस पे ही मैंने बहुत जगह, एज आई सेड, गूगल, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम पे जो टैटू आर्टिस्ट लोग होते हैं उन लोगों के इस पे भी देखा, बट ऐसे एज सच कुछ पसंद नहीं आया. सो वी वेंट टू टैटू आर्टिस्ट. नाउ व्हाट दे डू, एवरी टैटू आर्टिस्ट दे हैव अ आईपैड विद देम, एंड एज यू से देम तो वो उस हिसाब से बनाते हैं. तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो सजेस्ट यू, either if they have something they'll suggest you, or they like make it up in their iPad. I'll show you the process, I'll be inserting the clip. So what they did, according to our needs, they designed a tattoo, and उसमें फिर काफ़ी सारे हमने चेंजेस करवाए. नहीं है ऐसा चाहिए, ये छोटा चाहिए, ये बड़ा चाहिए, ऑल. इस तरीके से हम लोगों ने ना टैटू डिज़ाइन करा फाइनली. एंड देन यू हैव साइज का ऑप्शंस. सो इट इज़ लाइक सुमित का हाथ थोड़ा बड़ा है, सो ही डिड इट फॉर 3 इंच, एंड मेरा हाथ थोड़ा छोटा है तो मैंने थोड़ा कम करवाया, लाइक 0.5 इंच से मैंने कम करवाया. एक्चुअली नाउ आई डोंट रिमेंबर इफ इट इज़ 3 इंच ऑफ माइन या 2.5 मेरा है. So something like that. There is a 0.5 inch का difference between both of us because मेरा हाथ छोटा है. Otherwise the design is same, and what they do is they print it on a paper. So what you can do is you can like print होने के बाद you just try and on your particular part कि कैसा होता है, and you can then decide उसमें तुमको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, how is it looking.
So this tattoo designing in short takes lot and lot of time. मतलब अगर तुम tattoo निकालने जा रहे हो without finalizing your design कि हाँ मुझे यही exactly कराना है, तो आप अच्छे से टाइम निकाल के जाओ, क्योंकि जितना टाइम टैटू बनाने में लगता है उससे ज़्यादा टैटू फाइनल करने में लगता है. मतलब हमारे साथ तो पर्सनली यही हुआ था, बिकॉज इट इज़ लाइक अ परमानेंट थिंग. आई नो कि लेज़र वगैरह होता है, यू कैन रिमूव इट लेज़र के बारे में. सो आई गिव यू दैट आइडिया एट द एंड. पहले हम लोग प्रॉपर टैटू के बारे में बात करते हैं. सो आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड माय मनी इन लेज़र. उसको निकालो, एंड लेज़र इज लाइक मोर पेनफुल दैन द प्रॉपर टैटू मेकिंग. सो परमानेंट ही है बेसिकली अभी जो भी बनाया है. तो वी वर लाइक कि अच्छा चाहिए, कुछ भी नहीं बनाना है, पूरी ज़िंदगी लेकर घूमना है. तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा, बट या सब्र का फल मीठा होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन टैटू बनाने के बाद, मतलब टैटू बनाने का थॉट जब आता है उसके बाद पहला क्वेश्चन यही होता है कि पेन कितना होता है. सो तुम किसी को भी पूछ लो जिन्होंने टैटू बनाया है, जैसे हाँ थोड़ा बहुत होता है. देन यू गो टू टैटू आर्टिस्ट, उसको पूछो पेन कितना होता है, या पेन होता है क्या, या कैसे पेन होता है. सो दे विल बी लाइक हाँ थोड़ा ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है. बट व्हेन यू सिट देयर, आई डोंट वांट टू स्केयर यू एक्चुअली, बट द थिंग इज जब तुम टैटू बनाने लगते हो तो शुरुआत में ऑब्वियसली तुम्हें पेन होता है, बट धीरे धीरे यू गेट व्हाट यू से, यू अडेप्ट दैट पेन, एंड फिर इतना नहीं होता है. बट देन कम्स द पॉइंट, एक्चुअली नॉर्मली वो क्या करते हैं, इफ दिस इज अ टैटू तो छोटा 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 घुमाएंगे. बट व्हेन सपोज एज यू कैन सी दिस इज इन्फिनिटी, तो जस्ट अभी ये ऐसा कर्व आया ना, तो व्हाट दे विल डू, ऐसे डायरेक्ट घुमा देंगे. तो व्हेन वो कंटिन्यू जो लाइन घुमा दे तब इट पेन्स लाइक वर्स्ट. मतलब इट फील्स लाइक किसी ने तुम्हारा ब्लेड लिया है एंड लाइक डीप ऐसा कट किया है. सो वो पॉइंट आता है जब वो एकदम कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो तब वो पेन होता है. अदरवाइज यू कैन टॉलरेट इट. ऑब्वियसली इतने सारे लोगों के पास, ऑलमोस्ट काफ के पास तो टैटूज होते ही है आजकल. सो करवाते हैं तो दैट मीन्स इतना एक्सट्रीम पेन भी नहीं होता है. सो यू कैन गो फॉर इट. ऑल्सो अ टिप फॉर गर्ल्स, फीमेल्स के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि डू नॉट गो फॉर द टैटू मेकिंग व्हेन यू आर एट योर, मतलब व्हेन यू आर हैविंग योर पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, चम्स, व्हाटएवर यू कॉल इट. वाई? बिकॉज ऑलरेडी पीरियड्स में पहली बात तो तुम्हारा पेन थ्रेशहोल्ड जो है वो चेंज हो जाता है. इट इंक्रीजेज अ लॉट एंड तुम कॉन्शियस ज़्यादा होते हो अलॉन्ग विद दैट पीरियड क्रैम्प. लाइक आई डोंट थिंक इट्स अ जस्टिस फॉर वुमेन टू यू नो वो पेन सहन करना दो कि एक कम है, क्रैम्प्स एंड ऑल का पेन कम है तो हम और एक टैटू वाला भी ले. सो अवॉइड डूइंग दैट, बिकॉज जितना पेन नॉर्मली होता है ना टैटू बनाने पीरियड में, तुम्हें उससे ज़्यादा होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द पेन सेंसिटिविटी. नेक्स्ट इज छोटा सा टिप है, ऑलवेज कैरी अ कंपेनियन विद यू. कंपेनियन इज इन partner, sibling, friend, whatever, because you need a distraction at least whenever, like शुरुआत में तो तुमको distraction की बहुत ज़रूरत होती है. and obviously कैसा भी pain हो, when there is a distraction it helps a lot, especially with me. तो तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई चाहिए to distract you, you can talk about something and all that. तो that is another point. Also now I will be showing you the procedure कि कैसे टैटू बनता है, मतलब क्या 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 होता है. एंड देन देयर इज अ रिवीलेशन ऑफ टैटू. सो आई विल इंसर्ट द क्लिप ओवर हियर. सो नाउ प्रॉपर टैटू केयर. एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं ऐसे ओरली नहीं बोल रही हूँ, आई एम रीडिंग इट आउट.
सो दैट बिकॉज मैं प्रॉपर प्रिसाइज जो उन्होंने मुझे बोला है वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, एंड थोड़ा भी इधर उधर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को भी. ऑब्वियसली इफ यू विल डू, तुम्हारा टैटू आर्टिस्ट तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ही, बट स्टिल आई विल लेट यू नो. सो व्हाट इज इट, अप टू 7 days you have to just clean it with water and a light soap, very light soap. Along with that baby oil लगाना है 7 to 10 days तक. The next is 10 to 15 days तक no water. No water मतलब तुम थोड़ा सा जितना क्लीन करे उतना, उसके अलावा उस पर पानी मत जाने दो बिकॉज it will be prone to infections. Then there is, मैंने पूछा था बात करते वक्त, तो अभी तो मोस्टली इट इज लाइक 10 to 15 days या 15 to 20 days के बाद यू कैन बाथ नाइसली विदाउट एनी टेंशन. एक्चुअली 10 दिन के बाद ऑल्सो यू कैन डू दैट, बट लाइक उनका काम है ज़्यादा बोलना, सो दैट यू कैन टेक प्रॉपर केयर. देन शेव और वैक्स, तुम शेव या वैक्स वापस कब कर सकते हो, तो आइदर 1 or 1.5 month के बाद यू कैन शेव इट और वैक्स इट. मतलब थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो, बट इट इज लाइक प्रिकॉशन लिया हुआ बेटर है. ऑल्सो वॉट दे डू इज, आई इंसर्ट अ क्लिप. उन्होंने एक प्लास्टिक कवर दिया था हम लोगों को लगाने के लिए. इट इज काइंड ऑफ अ क्लिंग रैप. डोंट थिंक ये क्लिंग रैप है, पर अदरवाइज यू विल डू होम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल. वो प्रॉपरली लगा कर देते हैं. आई इंसर्ट द क्लिप ओवर हियर, तो दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रेन. और सुमित का तो एक्चुअली वो 1.5 day में निकल गया था, एंड मेरा मैंने 4 days तक रखा था. मतलब जब तक वो चलता है चलने दो, लाइक जब तक वो खुद से नहीं निकलता है, डोंट रिमूव इट. दैट्स द पॉइंट बिहाइंड इट, सो दैट वो वाटर एंड ऑल डस्ट वगैरह सबसे सेफ होता है. सो आई इंसर्ट द क्लिप ओवर हियर. Most painful part of the complete tattoo process is I'll be inserting a clip. पहले आप वो देख लो and then I'll let you know. So the way वो उसे जोर जोर से रब करते हैं to clean it. पहली बात तो जो सोल्यूशन होता है उससे वो इतना जलता है, और जलने के साथ जो क्लीन करते हैं ना, वी आर लाइक बहुत लाइटली क्लीन करेंगे, बट दे क्लीन इट लाइक एकदम प्रेशर लगा के, कुछ भी डॉट होगा, कुछ भी होगा, जो ब्लड क्लॉट, जो ऊपर थोड़ा बहुत ड्राइड ब्लड होता है, सब हम निकालेंगे. तो इतना पेन होता है वो. दैट इज द एक्सट्रीम पार्ट. टैटूज के सामने कुछ नहीं है, बट एक्सट्रीम यानी ऑब्वियसली सहन कर सकते हो, वैसा तो है. बट या दैट इज द मोस्ट पेनफुल पार्ट. व्हेन इट कम्स टू चार्जेस ऑफ टैटू, सो चार्जेस तो बेसिकली वो लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइक इंचेस. कितना इंच है उस हिसाब से तुम लोगों का प्राइसिंग रहता है. ऑब्वियसली सबका प्राइसिंग अलग होता है. आई हैव डन इट फ्रॉम पुणे किंग टैटू स्टूडियो. आई विल बी लिंकिंग दैट डाउन, लाइक जस्ट इन केस इफ समवन इज फ्रॉम पुणे और वांट्स टू डू. एंड उनके पास काफ़ी सारे लोग आते हैं फ्रॉम आसपास की जगह से, आसपास के गाँव वगैरह से भी लोग आते हैं टू मेक अ टैटू फ्रॉम हिम. सो ही इज़ रियली नाइस विद इट. उन्होंने मेरा सिस्टर इन लॉ का भी बहुत अच्छा किया है. आई विल एड दैट picture as well. So while clearing it off, Sumit ka is 3.5 inch का tattoo and mine is 3 inch का tattoo. So I'll let you know little bit about the tattoo removal process as well. तो उसमें काफ़ी सारे सेशंस होते हैं. लाइक टैटू तो एक बार भी बन जाता है, उसके काफ़ी सारे सेशंस होते हैं पर्टिकुलर, लाइक आई थिंक अ वीक के बाद या समथिंग लाइक दैट. तो उसके चार्जेस भी अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंचेस अगेन. एंड ऑल्सो टैटू रिमूवल इज मोर पेनफुल दैन मेकिंग अ टैटू. ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखता. तो उस हिसाब से ही जब टैटू बनाने जाओ तो सोच समझ के बनाना कि वापस निकलवाना ना पड़े. किसी भी इसका उसका नाम मत लिखा देना कि जो तुमको आगे निकालना पड़े. या तो जोक्स अपार्ट, बट या make a wise decision because it's gonna stay kind of a permanent maybe. This is the tattoo removal machine, just in case. Motivation for getting inked.